Okay, so the recording is in progress. हम start करते हैं class. The year is May June 17, variant 33. May June 17 है, variant 33 है. And the reason that we have opened up this particular case is this question, which is analyze the benefits to PV of outsourcing the manufacture of components for his shoes. पूरा shoe नहीं, उसके specific components, which means soles, leather, or some key components can be over there. Let's see benefits kya hai. The question is mainly focusing on benefits and outsourcing की बात कर रहे हैं. तो outsourcing का मतलब क्या होता है? That when you hire an external third party to perform a particular task. Let's start scanning the case and then we will attempt it. May June 17 variant 33. ठीक है, start करते हैं. बट आज की क्लास में ये सिनेरियो होगा दैट आई विल नॉट बी डिक्टेटिंग द कंप्लीट आंसर. मैं आपको पॉइंटर्स की फॉर्म के अंदर कंप्लीट चेन बना के दूंगा एंड यू विल राइट द आंसर ऑन योर ओन. ठीक है, एंड देन अगर कोई मसला या इशू क्रिएट होता है देन वी विल डिस्कस इट. Pedro Villa started PV, which is now a successful business making shoes. So they are making shoes which is manufacturing sector के अंदर है, secondary sector. By the time Pedro was 35, PV was a private limited company. Legal structure था private limited company with a factory making a range of shoes. Variety थी. 80% of sales are now exported. Yani they are operating in international markets and they have entered international markets with the help of agents or direct multinational shoe retailers. दो mediums हैं जिनके through ये international markets में अपना shoe sell कर. PV is one of many shoe manufacturers in one region of the country, which means competition is high. PV benefits from reliable suppliers, यानी इनके suppliers अच्छे हैं, of machinery and raw material, which means they have good stakeholders, यानी अच्छे suppliers हैं जो ये ensure करते हैं कि इनका process सही तरीके से चलता है. PV's market position. PV has operated successfully for 14 years, which means it is an established business. But for the last 3 years, profits have been falling. Reduce हो रहे हैं. क्या हुआ है देखते हैं. Competition is increasing in all the markets. Competition बढ़ रहा है. Cost of production, जिस तरह मैंने पहले identify किया था, competition तो बढ़ रहा है, but due to which cost of production भी बढ़ रहा है. Larger shoe manufacturers are taking over smaller businesses, which means takeovers हो रहे हैं, horizontal integrations हो रही हैं. Pedro has prepared a detailed report that analyzes the market position of PV and the reason for falling profits. The report concludes with an outline of possible actions that might be taken, and Pedro does not want to sell PV. वो अपना business खुद ही operate करना चाहता है, बेचना नहीं चाहता. Marketing की बात हो रही है. Major multinational shoe retailers have buyers located in the same region. यानी जो multinational shoe retailers हैं उनके पास buyers हैं located in the same region as PV's factory. यानी जहां पर PV की फैक्ट्री है वहां पर जो shoe retailers हैं उनके buyers वही हैं, यानी competition बहुत ज्यादा है. In addition there are independent agents. Independent लोग भी हैं जो इन shoe में काम करते हैं who arrange to supply both domestic and international shoe retailers. Pedro makes sure that he keeps good contact with as many agents and buyers as possible, regularly inviting them to the factory and sending them samples. Factory पे भी बुलाते हैं, samples भी send करते हैं. They try to have good relations. Let's see क्या हो रहा है आगे. The market is changing and retailers are increasingly interested in smaller orders. यानी एक साथ बड़े orders नहीं दे रहे, छोटे orders दे रहे हैं, which means जरूरत पड़ती है तब order देते हैं. Shorter delivery times भी demand कर रहे हैं कि जब order दें तो फौरन deliver करो. क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी चाहिए, which means competition इनको affect कर रहा है. The buyer for a major retailer warned Pedro. Warning क्या आई? I liked your products. तुम्हारे products अच्छे हैं and the designs and quality are good, but we cannot keep on ordering from a business that does not meet agreed delivery dates, which means Pedro is facing a problem that they are not able to deliver their shoes on time. Also price भी critical component बनता जा रहा है. हो सकता है पेड्रो के शूज क्या हो, एक्सपेंसिव हो, कॉस्ट ज्यादा हो. 20% of PV's output, 20% of the output is sold within the domestic sector. रिटेल आउटलेट के थ्रू बेचते हैं, बाकी 80% तो हमारा इंपोर्ट होता है.
लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी इंपोर्टेड कंपटीशन आ गया है, कस्टमर के पास चीप इंपोर्टेड ऑप्शन। Pedro has attempted to forecast future sales forecast करी, डेटा के अंदर दी हुई है। He predicts that PV is likely to increase exports, इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स बढ़ जाएंगी, and will continue to be successful। भले हमारे जो बायर्स हैं वार्निंग्स दे रहे हैं, but we will be successful, अब ये assume कर रहे हैं। Let's see if this happens or not। आगे देखते हैं प्रोडक्शन और ये वाला, उसके बाद आउटसोर्सिंग हमें अपना आंसर मिलेगा। PV shoes are made using batch production, एक सर्टेन क्वांटिटी एक साथ बनती है, with each employee specializing in one task, यानी specialized workers हैं। The leather and fabric parts of the shoes are cut out and shaped before being stitched and glued together. Other components including shoelaces are added. Checks for quality are only done after this stage, यानी at the end check होता है, which means क्या है, quality control process है। कौन सा process है? Quality control process है। Just before the shoes are packaged in boxes, the boxes are supplied and printed by outside printing firms, यानी boxes के अंदर already outsourcing कर रहे हैं, packaging बाहर से आ रही है। Pedro's report showed that production problems contributed to falling profits. Profits क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि production के अंदर मसले हैं। क्या मसले हैं? He identified two objectives that should help to cut cost. To reduce the percentage of finished shoes falling to meet quality standards to 5%, which means जब quality control में जो quality check के अंदर जो products reject हो रहे हैं वो 5% से ज्यादा हैं, and they want to reduce the inventory levels, यानी कम inventory hold कर, लेकिन उनको variety भी चाहिए, तो variety और ये सारे मामला कैसे देखेंगे, अभी तक हमें पता नहीं। Last year the factory's average capacity utilization was 95%, which means हम capacity बहुत ज्यादा utilize कर रहे हैं, यानी हमारी average cost तो कम होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों है? Material wastage बहुत high है, and 20% of finished shoes fail to meet quality standards. 20% से 5% पे आना is a big factor. कैसे achieve होगा? PV already holds a high level of inventory. अच्छा, in order to enable manufacture of many designs and meet increases in orders quickly, यानी ये चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन इतने बड़े changes कैसे करेंगे? Pedro thinks there may be more efficient and effective ways of working. वो सोच रहा है, आप देखते हैं क्या हुआ, और आउटसोर्सिंग के ऊपर ही हमारा सवाल है। The readily accessible network of suppliers is a major strength for PV, यानी PV के पास already supplier का network बना हुआ है। अच्छा, it enables PV to obtain material and outsource production of many components, वो कर सकता है। This leads to an efficient supply chain. Delays नहीं होंगे जो currently delays हो रहे हैं, और जो एक कस्टमर बोल रहा है कि आप टाइम पे डिलीवरी नहीं करते, so we will consider our future orders, तो वो मसला हल हो सकता है। However, it has made PV dependent on some key suppliers. जाहिर सी बात, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। Pedro is worried that costs are outside his control, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। He knows he needs to communicate with his suppliers more frequently, यानी कम्युनिकेशन का भी गैप। बाकी आगे बात तो हमारी स्टार्ट हो ही रही है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड बात हो रही है, और फर्दर ऑप्शन से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन अभी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं। जरा सेल्स फोरकास्ट अभी आप लोग पढ़ोगे भी, कैलकुलेशंस देखोगे भी, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने अपलोड ऑलरेडी पहले से की हुई है, तो अब उनको आपको वहां से मिल भी जाएगी वो, तो जब आप पढ़ लोगे फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस भी थोड़ा देखते हुए जाते हैं। तो मसला यहाँ पर ये आ रहा है, देखो पेड्रो की मशीनरी पुरानी हो चुकी है, वर्कर्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, मटीरियल की वेस्टेज भी है, और डिलीवरी डेट्स मीट नहीं हो रहे। अच्छा, सप्लाई चेन अच्छी है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज क्या है? नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो, नई मार्केट्स में एंटर हो सकते हो, लेकिन थ्रेट क्या है? कंपटीशन बढ़ रहा है और रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अच्छा, आगे एक्सपोर्ट मार्केट्स के हालात अच्छे हैं, अच्छा, कंज्यूमर इनकम्स बढ़ रही हैं, एक्सचेंज रेट ऑफ पीवीज होम कंट्री करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, जब डेप्रिशिएट कर रही है तो पेड्रो हैज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर शूज इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इनका शू सस्ता पड़ेगा, सेल्स बढ़ सकती हैं, ये फैक्टर आ रहा है। तो कुछ एलिमेंट्स हमें यहाँ पर फेवर में नजर आ रहे हैं। The question over here is telling us to analyze the benefits to PV of outsourcing the manufacture of components for its shoes, यानी लेसेस बाहर से बनवा ले, सोल बाहर से बनवा ले, लेदर कहीं और से कट करवा ले,
ये कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर आंसर, जिस तरह हमारी प्रैक्टिस है दैट वी आइडेंटिफाई द की कंपोनेंट या की डेफिनेशन इन दिस पर्टिकुलर आंसर, जो हमारे पास क्या है, आउटसोर्सिंग है। तो हमारी प्रैक्टिस सबसे पहले क्या होगी, दैट वी विल डिफाइन आउटसोर्सिंग। तो अगर आपने पास पॉइंटर्स लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि आज वाली क्लास के अंदर हम डिक्टेशन नहीं करेंगे, वी विल ट्राई डेवलपिंग द कंप्लीट चेन ओवर हियर, और आप चेन मेरे साथ डेवलप करो, आंसर आप लोग खुद लिखोगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, वी विल डिफाइन outsourcing, and we will link with the case that Pedro PV already has good connections with the suppliers, तो हम बात करेंगे outsourcing is when a business hires an external third party to perform a particular business function, as in the case it is being considered that the components of the shoes could be outsourced through external manufacturers. Also, the case identifies that PV has good connections with the suppliers. तो यहाँ पर हमारे पास एक इनिशियल इंट्रोडक्शन आ जाएगा हमारे केस से रिलेटेड और आंसर से रिलेटेड कि एक्चुअली आउटसोर्सिंग है क्या, और दूसरा पीवी क्या, पीवी की पोजीशन क्या है मार्केट में, कि वेदर पीवी कैन मूव फॉरवर्ड विद आउटसोर्सिंग और नॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ हमारे पास जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, दैट वी नीड टू फोकस ऑन द बेनिफिट्स एंड देन डेवलप द कंप्लीट चेन। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि एक प्रॉब्लम हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, द प्रॉब्लम दैट वी कैन आइडेंटिफाई ओवर हियर इज दैट पीवी is not able to deliver the shoes on time. PV is not able to deliver the shoes on time. Delivery issues आ रहे हैं। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होगा in which we will tell them that PV is facing what, delivery issues, as the supplier informed। ठीक है, as a supplier informed PV कि हम आपसे शायद फ्यूचर में डील ना कर पाए बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन टाइम। सो अब यहां से हम लिंक बनाते हुए चलेंगे। सो द बेनिफिट टू पीवी कुड बी दैट व्हेन पीवी विल आउटसोर्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द शूज टू अदर बिजनेसेस, they may be able to provide the components more quickly। जब आउटसोर्सिंग करेंगे तो बेनिफिट क्या हो सकता है कि कंपोनेंट्स क्विकली मिल जाएं ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, टाइम कम लगेगा, सो वी विल बी एबल टू डील विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम with which the case is currently facing, which is what, which is that the business is not able to deliver its shoes on time, क्योंकि वो अपने शूज टाइमली डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है, आज हम यहाँ पर इसको इस चीज से भी लिंक कर सकते हैं, वो क्या चीज है, that already, ठीक है, that already we have a supplier network which can provide us the components more quickly, and when we will be able to deliver the shoes more quickly and on time, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा में ये होगा that we will be able to tackle the competition in the market, हम ये बात यहाँ पर कर सकते हैं कि हम कंपटीशन को टैकल कर सकेंगे। बट if the suppliers cause a delay, the overall brand image of the business may be impacted। तो इस तरीके से आपका पैराग्राफ खत्म होगा। तो हमने बेनिफिट की क्या बात करी कि सबसे पहले मैंने बताया कि मसला क्या आ रहा है, डिलीवरी इश्यूज का मसला आ रहा है कि हम टाइम पे डिलीवरीज नहीं दे पा रहे। इस तरह एक सप्लायर ने हमें इन्फॉर्म किया। तो जब हम आउटसोर्स करेंगे तो हो सकता है हमें कंपोनेंट्स क्विकली मिले, जल्दी मिले। जब हमें कंपोनेंट्स क्विकली मिलेंगे
जल्दी मिलेंगे तो we will be able to tackle the particular problem we are facing. When we will be able to tackle the particular problem that we are facing, so we will be able to deliver the shoes on time and we will be able to resolve the particular problem. Also, we will be able to tackle the competition as we already have a chain of suppliers which are already available in the market. ठीक है, जो हमें क्विकली डिलीवर करने के लिए तैयार है. ठीक है, लेकिन however if the suppliers create delays or cause delays, the overall brand image can get impacted. तो एक पैराग्राफ यहाँ पर खत्म होता है. सही है, ये वाला पैराग्राफ, ये चेन नेटवर्क क्लियर है आप लोगों को या कोई मसला? बताओ मुझे प्लीज. इज दिस पर्टिकुलर चेन क्लियर टू यू या कोई इशू है यहाँ पर? यानी आप लोग ये वाली चेन से एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आई थिंक डेवलप कर लोगे. चलो लेट्स क्लियर द पर्टिकुलर स्क्रीन एंड मूव ऑन टू द अदर बेनिफिट. क्या आप अदर बेनिफिट कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो हम बात करते हैं द केस आइडेंटिफाइज दैट द सप्लायर वाज टेलिंग दैट, पहले तो हमने क्या मतलब मसला आइडेंटिफाई किया कि सप्लायर बोल रहा है कि पहले आप टाइम पे डिलीवरीज नहीं दे रहे. फिर सप्लायर हमें बोल रहा है कि एक और इशू क्या आया, एक सेकंड लेट मी सी, हमने देखा था यहाँ पर वेयर वर द इश्यूज. हाँ ये रहा, डिलीवरी डेट्स और प्राइस इज बिकमिंग अ क्रूशियल फैक्टर. पहले हमने डिलीवरी डेट्स वाला तो मसला हल कर दिया. अब हम बात करते हैं दैट as the supplier informed that price is a crucial factor. So हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, so when PV will outsource its components to other manufacturers, it will enable the business, it will what? Enable the business to lower its cost. It may enable the business to lower its cost. Cost lower हो सकती है. ठीक है, जब कॉस्ट लोअर हो सकती है, क्यों लोअर हो सकती है? एज वी कैन गिव बल्क ऑर्डर्स, वी कैन गिव व्हाट? बल्क ऑर्डर्स ऑफ द कंपोनेंट्स, बल्क ऑर्डर्स ऑफ कंपोनेंट्स टू डिफरेंट सप्लायर्स. बल्क ऑर्डर्स ऑफ कंपोनेंट्स दे सकते हैं हम डिफरेंट सप्लायर्स को. जैसे हम बल्क ऑर्डर्स ऑफ सोल्स दे दें, बल्क ऑर्डर्स ऑफ शू लेसेस दे दें, बल्क ऑर्डर्स ऑफ लेदर दे दें. इससे हमें क्या मिल सकता है? परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्या मिल सकता है? परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सकता है, जिससे हमारी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कम हो सकती है. क्या हो सकती है? ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कम हो सकती है. या हमारी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, तो एक और बेनिफिट क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी. And when we will receive orders from suppliers, we can check the quality at that particular moment, जिसकी वजह से जो currently 20% of the product हमारे जो फेल हो जाते हैं, अब उसका बर्डन भी किसके ऊपर चले जाएगा? सप्लायर के ऊपर चले जाएगा, जिसकी वजह से हम कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं और कस्टमर को हम अच्छी क्वालिटी भी दे सकते हैं. ठीक है, सही है. ऑल्सो एज द मार्केट इज व्हाट? कंपेरेटिव. मार्केट क्या है? कंपेरेटिव है और हम ऑलरेडी 95% कैपेसिटी पे हैं. तो जब हम आउटसोर्सिंग करेंगे तो हम अपनी ओवरऑल कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं. तो बात यहाँ पर आगे खत्म हो सकती है. तो जब हम आउटसोर्सिंग में जाएंगे तो जिससे हमें हमारी कॉस्ट भी कम हो सकती है, हम क्वालिटी का बर्डन भी सप्लायर पे डाल सकते हैं, एंड वी कैन इंक्रीज द ओवरऑल कैपेसिटी एंड वी कैन फोकस more on the new designs as there is increased competition. So when we will outsource the components, the business can focus more on designs and try to create a name for itself in the market. So outsourcing के अब जब डिजाइन हमने क्रिएट कर लिए, वेरिएशंस ले आए, तो हम आपके लिए एक अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा था वो प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके ये काम होगा. लेकिन
as when we will outsource, तो मसला क्या आएगा? Some of the workers may be made redundant. Therefore, they may retaliate and cause industrial actions for the business, which is one of the problems the business may need to deal with. इस तरीके से आपका ये दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट होगा. अब हमने क्या बोला, जब हम आउटसोर्सिंग करेंगे तो ऑर्डर की कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम बल्क में जब कंपोनेंट्स को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें परचेसिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल सकता है. जब हमें परचेसिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल सकता है तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगी. और करंटली जो हमारे पास क्वालिटी का इशू है कि हमारे 20% ऑफ द प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका बर्डन हम डाल देंगे सप्लायर के ऊपर. लेकिन वहां पर हमें स्पेशलाइज्ड वर्कर्स रखने पड़ेंगे जो ये चीजें चेक कर सकेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी है या नहीं बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स. ठीक है, जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स टू 5% वो भी कर पाएंगे. दूसरी बात, जब हम आउटसोर्स कर देंगे तो देन द बिजनेस कैन फोकस मोर ऑन न्यू डिजाइन्स, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है. तो जब वो नए डिजाइन्स बना पाएंगे तो वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे. ऑलरेडी हमारा बिजनेस 95% कैपेसिटी पे बैठा हुआ था, तो आउटसोर्सिंग विल एनेबल अस टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी as well as bring in new products and designs which will make the business compete with local and international competitors, which may result in increase in market share, sales and profits for the business. However, outsourcing may cause redundancies